Hello, ninth standard. Today we are going to study about the Bohr model of the atom. But we have till now already studied the different structure of atom, different models which are based on the structure of atom, and that is the Dalton model. Yeah, obviously we haven't discussed this model, but it just Dalton gave that the atom look like a billiard ball and it is spherical in shape. Whereas the next one model comes about of Thomson, in which he supposed to give a plum pudding model, and he compared his model of an atom with the plum pudding, in which the there is a positive charged sphere in which electrons are embedded throughout this sphere. Okay, bache. Then after that, Rutherford comes, and Rutherford gives an experimental proof for the structure of an atom, but there was also certain limitations of this model, and due to which the next model comes of Bohr. So the first one, the drawbacks of Rutherford model was simply that he told us, or he explained, that atom consists of two parts. One is the positively charged inner sphere, whereas the negatively charged electrons that are revolving around this nucleus in a circular orbit or circular shells. Fine. And but according to the electromagnetic theory of that time, if there is a charged particle and which accelerated, then it always used to be emit energy in the form of electromagnetic radiation. And then according to the Rutherford also, that electrons are revolving around the nucleus, so which means that electrons would be in a state of acceleration all the time. ठीक है बेटा, जब अगर इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है और तो इसका मतलब, और वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो एक्सेलरेट हो रहा है, और अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है तो वो अब रेडिएशंस क्या कर रहा है, अपनी एमिट कर रहा है. सो इट मींस द इलेक्ट्रॉन्स आल्सो शुड emit such type of a radiation, and if any particles emit radiation, then obviously gradually its energy goes down. Fine. And ultimately, if the energy of electrons fall down or slow down, then they will at last fall into the nucleus by following a spiral path. जैसे ये देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन है आपका, तो ये इस पाथ को क्या कर रहा है बेटा, ये ऐसे घूमेगा घूमेगा, एंड देन अल्टीमेटली ये कहाँ पे गिर जाएगा, ये आपका न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा. So Rutherford model that was failed to explain this stability of atoms. Okay, bache. So that's why this was the drawback. And then after that, who comes next? Then Bohr comes the next. Okay. Next is about the Bohr atomic model. And then according to this, an atom is made up of basically three particles. कौन किस किस का बना होता है? It is made up of electron, proton and neutron, where electron having a negative charge on it, protons have a positive charge on it, and whereas neutral do not have any charge. These particles are neutral in nature. So due to the presence of equal number of negative charged particles, that is electron, and positive charged particle, which is known as proton, atom as a whole is electrically neutral. Means atom के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, क्योंकि जितने भी एटम में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं. बेटा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके डिफरेंट लोकेशंस में एटम की क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि protons and neutrons are present in the small nucleus,
whereas electrons are revolving in the orbits. Or because of the presence of this positively charged particle proton in the nucleus is positively charged, whereas electrons जो होते हैं that revolve rapidly around the nucleus in a fixed circular path. ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया था कि वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, which are known as energy levels or shells or orbits. These orbits are represented in two manner. या तो हम इन्हें नंबरिंग से कर सकते हैं 1 2 3 4 5. n is equals to, जहाँ पे कि small n is equals to number of orbit या number of energy shell या number of energy levels होता है, या फिर हम इस n को KLMNOP से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और ये लेवल जो होता है that will always counted from center of the atom toward outside, बाहर की तरफ काउंट किया जाता है. each energy level, या हम कहते कि each energy shell is associated with the fixed amount of energy. बेटा उसकी एनर्जी क्या रहती है, फिक्स रहती है. that energy remains constant. वो लूज या गेन या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उस ऑर्बिट का, उस सर्कुलर पाथ की एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी. वो कभी भी लूज अपनी उस मिनिमम एनर्जी को नहीं करेगा. ठीक है. और जितनी एनर्जी न्यूक्लियस सेल जो नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस है, that having a least energy or minimum energy, and the shell which is farthest from the nucleus, that will be have a maximum energy. ठीक है. there is no change in energy. जैसा कि मैंने कहा, एनर्जी लेवल की एनर्जी या सर्कुलर पाथ की या एनर्जी ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है ऑर्बिट्स की, वो क्या होती है, that will remain same until unless electron is revolving in the same one level. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल आ रहा है या जंप कर रहा है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, तो may be possible that some energy is absorbed or some energy is emitted. Okay बच्चे, but for same path, for same level, it will always remain same. So now we are talking about the postulate. हमने जैसे आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है that revolve around the nucleus and obviously with different velocities in concentric circular orbits. Beta concentric means here that which is having a same center. एक ही center होगा but the radii is going to be changed. एक के बाहर एक, ठीक है, center पे. The energy of these electrons in orbit, already we have discussed, that remain constant. As long as the electron remain in the same orbit, the energy will neither emit nor absorb. ठीक है. और ऐसी स्टेट जिसमें कि वो एक ही एनर्जी लेवल पे रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स और मेन एनर्जी स्टेट. नेक्स्ट आ जाता है स्टेशनरी स्टेट्स, और या इनको हम अलाउड एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर यूजुअली एग्जिस्टेड इन दीज एनर्जी लेवल्स, जहां पर कि n इज इक्वल्स टू 1 2 3 ऐसे कहेंगे. और इसे बोर क्वांटम कंडीशंस या बोर क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं, विच यू विल डिस्कस इन डिटेल इन 11th स्टैंडर्ड. एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की चेंज होती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरी में. जैसे मैंने कहा, अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मींस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जंपिंग कहां से कहां को है, इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट पर है, देन इट विल एब्सॉर्ब एनर्जी. और जब वो क्या हो रहा है, आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आ रहा है, देन इट विल रिलीज एनर्जी. ऐसे करके हम दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज अ मॉडल ऑफ एनर्जी लेवल्स या डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिट्स
कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर से लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे, तो वो एब्जॉर्ब करेगा रेलेवेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसी को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, ये चीजें बेटा आप पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड में डिटेल के अंदर. नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑफ दिस मॉडल. इसमें दिस इज द न्यूक्लियस, ये आपका n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकेंड एनर्जी लेवल, और ये थर्ड एनर्जी लेवल दिखाया हुआ है आपका. ठीक है. अब आ जाते हैं, अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हमेशा याद रखो, जैसे मैंने कहा था ना, बहुत सारी शेल होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो फर्स्ट शेल में बेटा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन एंटर. सेकेंड वाली में भी हमारे कितने इलेक्ट्रॉन एंट्री हो सकती है? दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. थर्ड शेल में भी हमारा 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन एंटर. ठीक है. जबकि फोर्थ शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं? हम डाल सकते हैं इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें भर सकते हैं, लेकिन 18 में से हम जो इसमें भी किसी भी शेल के अंदर बेटा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं. ठीक है. सो ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. जैसे हाइड्रोजन जिसका कि एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके पास नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Atomic number of an atom is equals to number of electron or number of proton, and that's why number of electron यहाँ पर कितने हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे आपके क्या हैं? atoms हैं. ठीक है. ये सारे के सारे atoms हैं, and that's why इनमें सब में हम क्या करेंगे? number of electrons will be their atomic number. आयंस के केस में ये डिफरेंट होता है. बेसिकली एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ protons or number of electrons, whereas in ion atomic number is only the number of protons because number of electrons get changed over there. हम उसे भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. अभी के लिए हम ये बताते हैं आपको, यहाँ पर हाइड्रोजन का जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कितना बना बेटा इसका? 1. हीलियम का 2. तो फर्स्ट शेल में मैंने जैसे आपको बताया 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, तो यहाँ पर तक 2. यहाँ पर अब कितना हो गया इसका? अगर लिथियम का देखोगे तो 3 आ गए. तो पहली शेल में तो मैक्सिमम 2 की कैपेसिटी है, तो आप यहाँ सारों में देखो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, एक सेकेंड बच्चे, जस्ट 1 मिनट, मैं आपको बताती हूँ. ये देखो, इसमें सब में देखिए पहली शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ रहे हैं. दूसरी में जब लिथियम का केस है तो 1 इज लेफ्ट, तो वो सेकंड शेल में एंटर कर गया. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के में 1, के लिए बना 1 फर्स्ट शेल में, और सेकंड शेल जैसे कि आप एल कह रहे हो, तो उसमें आ गया 1. बेरिलियम में देखिए बेटा 4, और इसके अंदर 2 एंड 2 बन गया. बोरोन में 5 है, तो पहली शेल में 2 आएंगे. एंड जैसे कि आप के शेल भी कह रहे हो, फर्स्ट को हम क्या कहते हैं? के शेल. ठीक है. सेकंड को हम क्या कहते हैं? एल. थर्ड को हम क्या कहते हैं? एम. और फोर्थ को हम क्या कहते हैं? एन. ठीक है. तो इसके अंदर सेकंड में एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2. तो यहाँ बन गया कॉन्फ़िगरेशन 2 2. अगर बोरॉन की बात करते हैं तो इट्स 5, सो इट बिकम्स 2 एंड 3 बिकॉज 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5. तो ये बना 2 एंड 3. ऐसे ही अगर मैं नियॉन ले लूं, तो नियॉन में एटॉमिक नंबर है 10, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो फिर कितने बच गए? 8. और मैक्सिमम सेकंड शेल में कितने आ सकते हैं? 8. तो ये बना 8. तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन इज बिकम 2
8. If I am talking about the magnesium case, so its atomic number is 12. Its electrons are also present. Total number of electrons are present, also 12. फर्स्ट शेल में के शेल में कितना है बेटा 2, बचे कितने 10. सेकंड शेल जिसे कि एल भी कहा जाता है वहां पे आए 8, बचे कितने 2 + 8 10, 2 बचे. So that will enter in the third shell, which is also known as M shell. So its configuration become 2A2. So बस आप इतनी इसी तरीके से देखना है. Like कैल्शियम में देखो atomic number is 20. So the total number of electrons are also 20. So its first shell configuration is 2. Second में कितना आ गया 2 + 8 10, 10 + 8 18, and 18 + 2 20. So calcium electronic configuration becomes 20 here. So clear? ये आ गया आप लोगों को समझ कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है बच्चे आपका, ठीक है बेटा. तो इसमें हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स की. फाइन. तो यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. पहला क्या था कॉन्फ़िगरेशन. इफ आई नो द कॉन्फ़िगरेशन देन it becomes very easy to draw the structure of these elements. Like how will you draw? Just जहां पर आपका ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है that means that is the nucleus. ये क्या है हमारा, ये है हमारा न्यूक्लियस. ठीक है, विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर. और उसके बाहर क्या है, orbits हैं. Now in this it is having only the one orbit. Just 1 minute. This is only hydrogen is having only one orbit and that is k orbit. First shell है क्योंकि इसके पास, तो ये सिर्फ एक k orbit लेगा. और उसके अंदर because it is having a one atomic number, so total number of electron are present in one. So configuration also under k shell that is having only one electron. So यहाँ पर आप ये देखो, ये इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट. ठीक है. Similarly helium is atomic number is 2, so total number of electrons are 2. So first shell के अंदर, और जैसे कि आप K shell कहते हो outside nucleus, there are 2 electrons. लिथियम में देखिए बेटा, फर्स्ट शेल में K में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने ड्रॉ किए. ठीक है, K में हमने कितने किए ड्रॉ, that we draw 2 electrons, जबकि हमने L shell में कितने किए, because its configuration is 2 1, so 1 electron will be present in L shell. Similarly here beryllium में 2 2 है, तो K के अंदर 2 और L में भी 2. ऐसे ही करते चलोगे तो यहाँ पे लास्ट में देखो बच्चे, नियन में 2 और 8 है, तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 रह गए और 8. ये देखो अभी ये क्यों पेयर में है, दो दो के पेयर में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है. क्यों कर रहा है, दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन. ठीक है, वो चीज हम आपको बाद में बताएंगे. बट ये दो दो के पेयर में देखिए, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है आपके 4, 2 यहाँ पर है 6 और 2 यहाँ पर प्रेजेंट है 8. So similarly this is the electronic structure of elements from 1 to 20 is given. So you just have go through. This is a assignment given to you people, so just go through this assignment. Today you people have to write down all these things in your chemistry register. So do these question postulates which we have already discussed. Okay, then electronic configuration, you have to write down electronic configuration of these elements and you have to draw this of these apart from preparing your whole notes. So thank you. We will come with the another one video next time. Till that time, just revise this topic of a structure of atom. Thanks a lot, students.